آن لائن کہانیاں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ مرد کا دل سمندر کی مانند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے رنگ برنگ مچھلیاں اس میں آ کے تیریں، جبکہ عورت شارک بن کر اکیلی تیرنا چاہتی ہے۔ جو مرد رات کو دیر سے گھر آتے ہیں اور عورت کو وقت نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم بستری کے لیے بیوی کو بستر پر نہیں آنے کا بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت لازمی ہے۔ اگر ہم پھولوں کے اوپر سوئیں تو ہماری پہلی رات کہلاتی ہے، اور اگر پھول ہمارے اوپر سوئیں تو ہماری آخری رات کہلاتی ہے، اور یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ تلخ حقیقت، وہ راز کبھی چھپا نہیں رہ سکتا جس کی عورت کو خبر ہو جائے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر آپ عورت کا سینہ چوم لیتے ہیں تو آپ اس کی روح کے ساتھی بن جاتے ہیں، اگر آپ اس کی شرمگاہ چوم لیتے ہیں تو آپ اس کے ہوس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت پر سمجھ آئی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر آپ کی خوشامد کرتے ہیں۔ شرمگاہ کے وجود کی خواہش جاگتے ہی محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ اپنی بیوی کا تہ دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ شادی کے کچھ وقت بعد اگر شوہر بیوی کے قریب آنا چھوڑ دے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب اسے کمزوری ہے، دوسرا مطلب اسے کوئی اور مل گئی ہے۔ مجھے پسند ہے وہ تنگ نظر اور چھوٹی سوچ والا مرد جو تنگ اور بغیر دوپٹے والی لڑکیاں پسند نہیں کرتے۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہیں، اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ عورت جیسا کوئی پیر نہیں دیکھا میں نے، جس کو مرد جس طرح اور جہاں ملے بدل دے۔ عورت میں سب سے قیمتی خوبصورت چیز اس کی حیا ہے۔ اگر عورت بے حیا ہو جائے تو بازاروں میں بے مول بکتی ہے۔ جو عورت مرد کی دو کمزوریاں جان لے تو پھر عورت کے قدموں میں مرد گر جاتا ہے۔ پہلی، مرد کی کمزوری عورت کا جسم ہے، دوسری مرد کی کمزوری عورت کی ادائیں ہیں۔ شوہر کی 5 ایسی حرکات جنہیں بیوی بہت پسند کرتی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اس سے بیوی اطمینان اور راحت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کے چہرے اور ماتھے پر لٹکنے والے بالوں کو نرمی سے ہٹانا، ایسا کرنے سے بیوی آپ کو ہر طرح کا تاثر دے گی۔ نمبر 3، بیوی کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرنا، اس میں عورت اپنے لیے حد درجے کی اپنائیت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 4، بیوی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، حتیٰ کہ بیوی کو غصے کی حالت میں بھی یہی کہیں۔ یہ کہنے سے بیوی میں آپ کے لیے محبت بھری فیلنگز پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے وہ بھی آپ کو ایسے ہی کلمات کا تبادلہ کرے۔ نمبر 5، بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفے کی صورت میں عطا کی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسکراہٹ انسان کی روح کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ وہ ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور بات بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تم اپنی بیوی کے سامنے کبھی مت کرنا، ورنہ پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ تم کبھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤ گے۔ اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو، جائز مراد پوری کرو، مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے کبھی مت بتانا۔
अपनी बीवी के सामने कभी अपने माँ बाप, बहन भाई, बेटी की बुराई मत करना, वरना बीवी की नज़रों में तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई की इज्जत ख़त्म हो जाएगी। कभी भी अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप, उसके भाइयों को, उसकी बहनों को बुरा भला मत कहना, वरना तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। दोस्तों, ये 4 बातें कभी भी अपनी बीवी के सामने मत करना, वरना ऐसी बातें तलाक होने के वजूद का बायस बनती हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे माशरे में शादी के नाम पे ही मजबूरियाँ होती हैं, वरना मोहब्बत में चस्के लेते वक्त ना तो माँ का हार्ट फेल होता है और ना ही बाप की इज्जत ख़राब होती है। बिस्तर पर लाना हो तो कोई ज़ात नहीं देखता, शादी की जब बात आती है तो 7 नस्लों की ज़ात याद आ जाती है। लोग कहते हैं औरत राज नहीं रख सकती। अगर औरत राज ना रख पाती तो मुआशरे का कोई मर्द मुंह दिखाने के लायक ना रहता। औरत मोम बस अपनी पसंद के मर्द के लिए ही होती है, वरना उस जैसा पत्थर दुनिया में कोई नहीं। इंसान जब साथ होता है तो पास होता है, तब उसकी कदर नहीं होती, और जब दूर चला जाता है तब पहले की गई हर बेकदरी वाली बातें रूह को बहुत तकलीफ़ देती हैं और हम बेबस होते हैं। निकाह का लालच देकर रूह की धज्जियाँ उड़ाने वालों, इसका कर्ज तुम अपने घर से अदा करोगे। हमारे माशरे में एक बार शादी हो जाने के बाद मर्द या औरत का तलाक याफ्ता होना पूरे ख़ानदान के लिए ज़िल्लत की अलामत बन जाता है। वालिदैन की हर सूरत कोशिश यही होती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, बेटी निभाती रहे। घर में मारपीट हो या जहरीला माहौल, घर के जोड़े रखने के अव्वलीन जिम्मेदारी औरत के नाजुक कंधों पर डाल दी जाती है। कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों में निकालते हैं, वो अगर सिर्फ एक कीड़ा अपने आप में से निकाल लें तो उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर जाती है। औरत को नापसंदीदा मर्द की मोहब्बत भी हवस लगती है और पसंदीदा मर्द की हवस भी मोहब्बत लगती है। लोगों में भी दिमाग की सलाहियत होती है, खा जाते हैं दूसरों की खुशियों को। जब कोई मर्द औरत को बार बार एक ही बात कहता हो तो समझ जाएं कि वो औरत को नंगा देखना चाहता है। वो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है। अज़ियत के बदले में अज़ियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने से ही आता है। हर कोई खुश रहना चाहता है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, लेकिन बारिश के बगैर कोसे क़ज़ा मुमकिन नहीं बनती। बदचलन औरत की पहचान कैसे की जाए, ये बात हर मर्द के लिए जानना ज़रूरी है। तो आज आपको बताते हैं शादीशुदा बदचलन बदकिरदार औरत की कुछ ख़ास ऐसी निशानियाँ जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। नंबर 1, बदचलन औरत अपने शौहर से बात बात पर दंगा फसाद करती रहती है। नंबर 2, रात के वक्त मुंह शौहर से दूसरी तरफ करके सोती है। नंबर 3, जिस वक्त तक शौहर घर में रहे ऐसी औरत के माथे पे बल पड़े रहते हैं। जैसे ही खावंद घर से बाहर चला जाता है उसका चेहरा खिल उठता है। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने मुस्कराती और हंसी मजाक करती है। शौहर की गैर मौजूदगी में खूब बाल बनाती और बनाव सिंगार करती है। नंबर 5, घर के दरवाजे और खिड़की पर खड़े रहना, बाहर के लोगों खासकर मर्दों को देखकर खुश होना और इनकी तारीफ़ें करना, इनके नाम याद रखना और शौहर का बोसा देने पर गालों को जल्दी से साफ़ कर लेना। तो दोस्तों, ये सब निशानियां जिस औरत में पाई जाएं वो ज़रूर गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखती है या रखने की ख्वाहिशमंद होती है, और जो ख्वाहिशात खावंद से पूरी नहीं हो सकती वो उनसे पूरी करवाने की कोशिश करती है। हम वाकई में उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, और तब हमारी असल तबाही ही वहीं से शुरू होती है। जब शौहर बीवी से अलग अलग और खामोश रहने लगे और बीवी के साथ कुछ भी शेयर ना करे तो समझ जाएं कि वो किसी और के साथ शेयर करता है। जब कोई मर्द किसी औरत के लिए रोता है तो समझ लें कि वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। हज़रत इब्न अब्बास का फरमान है कि शैतान का औरत की 3 चीज़ों पर ज़्यादा हमला होता है, इसकी नज़र, इसका दिल और इसकी शर्मगाह पर।
औरत ज़ात 3 चीज़ों पर मान करती है। पहला हुस्न, दूसरा पैसा, तीसरा जिस्म। इसके बरक्स ख़ानदानी अच्छी औरत अगर मान करती है तो अपने शौहर पर। मर्द की 2 अदाओं पर औरत मर मिटती है, मर्द की हमदर्दी और उसकी अपनी औरत के साथ सच्चाई। क्योंकि औरत हमेशा यही चाहती है कि मर्द खालिस उसी का हो, वो मोहब्बत में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी भी शख्स को कभी इतना इख्तियार मत दें कि वो सिर्फ अपने अल्फाज से ही आपका सुकून छीन ले। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम हसूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। औरत मोहब्बत के बगैर ऐसे मर जाती है जैसे कोई फूल धूप ना मिलने से अपनी ताजगी खो देता है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे और फिर चाहे अलग हो जाए। मर्द रोता हुआ औरत के कदमों में तब आकर गिरता है जब औरत मर्द की पसंद की हो और उसे मुंह ना लगा रही हो। हमारे मुआशरे में शादी के नाम पर ही मजबूरियां होती हैं, वरना मोहब्बत में चस्के लेते वक्त ना तो माँ का हार्ट फेल होता है और ना ही बाप की इज्जत ख़राब होती है। ज़्यादातर औरतें तेज़ रोशनी की बजाय हल्की रोशनी और अंधेरे में रोमांस करना पसंद करती हैं। ईमान के बाद बड़ी नेमत औरत है। जैसा मर्द होगा वैसी ही औरत मिलेगी, ये कुरान कहता है। कुछ मर्द दुनिया की हर औरत का दर्द बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, सिवाय एक औरत के जो उसकी बीवी होती है। तलख हकीकत, औरत की शौखियाँ, शरारतें, मायने और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर में होती हैं। ससुराल में औरत की तबीयत और सब्र का इम्तहान होता है। कुरान कहता है, जो लड़की तुम्हें पसंद हो उससे निकाह कर लो। वो औरत नफ्स की लज्जत के पीछे भागती है जिनके शौहर उनको लज्जत से महरूम रखते हैं। अपने आप से बदबू आना, अपनी गंदगी का एहसास होना बहुत बड़ा करम है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें अपने आप से बदबू नहीं आती। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे औरत शहवत से भड़क उठती है, और वो है तन्हाई और अपने शौहर की फुरकत। जब इंसान नाराज़गी दूर करने की कोशिश करता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो गलत है, बल्कि उसे अना से ज़्यादा रिश्ते की कदर होती है। औरत से ज़्यादा हम बिस्तरी मर्द की 3 चीज़ें तबाह कर देती है। पहली उम्र, दूसरी कद, तीसरी नफसानी ताकत। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है, कामयाब लोगों से जलता है। अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए अल्लाह से शिकवा नहीं शुक्र अदा किया करो। मतलब ये ना हो कि लोग इज़्ज़त करना भूल जाएं। औरत से लज्जत जमा देर पा रखने के लिए 3 चीज़ें यानी कि वर्जिश, दूध और रूहानियत का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। लोग ऊपर से आपके साथ होते हैं और अंदर से आपके सख्त खिलाफ होते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।